بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو محمد حضرت سیدنا امام حسن ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نابغہ روزگار میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ اور شکل و صورت میں ان کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا نور اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دھڑکن ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منجانب اللہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد اور القابات تقی، ذکی، مجتبی، سید اور شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن 3 ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دولت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام کی طرح حسن و جمال میں بے مثل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ اور ان علوم پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ہوئے، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت اسماء بنت امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے کے لاؤ۔ حضرت اسماء بنت امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنے کان میں اذان دی اور پھر بائیں کان میں تکبیر کہی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بال منڈوائے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں۔ نیز اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختنہ کروایا اور نام مبارک رکھا۔ چنانچہ اسی نسبت سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلائی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمانہ طفولیت کے قریباً 8 سال اور 4 ماہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عطفت میں بسر کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے کھیل رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنی زبان دی اور فرمایا کہ اے اللہ، میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا تو راستہ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے جو کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والہانہ آگے بڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور فرمانے لگے کہ میرا باپ بھی تجھ پر قربان ہو، کیونکہ تم میرے آقا سرور دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں ہو۔ حضرت سیدنا
अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सुना तो मुस्कुरा दिए। तबक़ात इब्न साद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि मैंने देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में सर्वसजूद हैं और हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर सवार हो गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सजदा बेहद लंबा कर लिया, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमर से ना उतर गए। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फितना व फ़साद और खून रेज़ी क़तन नापसंद थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत में बर्दबारी पाई जाती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत के क़िस्से भी ज़म दो आम थे। एक मरतबा एक आराबी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी हाजत बयान की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त 10,000 दरहम मौजूद थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सब के सब इस अराबी को दे दिए ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज बाप्यादा किए और ये तमाम हज आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बरहना पा गए। बरहना या चलने की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव में वर्म पड़ जाते थे। सही बुखारी शरीफ में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठे हुए थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब इशारा करते हुए फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद है और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी वसातत से मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। चुनांचे जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद बुज़ुर्गार हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मुनसब खिलाफत पर फायज़ हुए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली और मुसलमानों को फिर से एक खिलाफत पर इकट्ठा किया। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनसब खिलाफत पर फायज़ होने के बाद झील का खुतबा दिया। लोगों, तुमसे एक ऐसा शख्स जुदा हुआ है कि ना अगले उससे बढ़ सके और ना पिछले उसको पा सके। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना इल्म अता फरमाया और वो कभी नाकाम ना रहा। मिकाईल और जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसके दस्त रास्त थे। उसने बवक्त शहादत 700 दरहम जो उसकी मुकर्रर तनख्वाह से बच रहे थे के सिवा कुछ नहीं छोड़ा और ये दरहम भी एक खादिम के लिए थे। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तहम्मुल व बर्दबारी का अंदाज़ा इस वाक़े से भी होता है कि एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोफा की जामा मस्जिद के दरवाज़े पर तशरीफ़ फरमा थे कि एक देहाती आया और उसने आते ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन को गालियाँ देना शुरू कर दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत तहम्मुल के साथ उससे दरियाफ़्त किया कि क्या तू भूखा है या फिर तुझ पर कोई और मुसीबत आन पड़ी है। उस देहाती ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को अनसुनी करते हुए फिर से गालियाँ देना शुरू कर दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खादिम से कहकर एक तश्त चांदी का मंगवाया और उसे दे दिया और फरमाया कि उस वक्त मेरे घर में सिर्फ यही मौजूद है, तुम इसे रख लो। इस देहाती ने जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल तहम्मुल देखा तो कहने लगा कि मैं सिद्क़ दिल से गवाही देता हूँ कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हकीकी फ़र्ज़ंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इबादत में खुशू व खुज़ू हासिल था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वज़ू फरमाने लगते तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हर उज़ू कांपना शुरू हो जाता और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे मुबारक का रंग ज़र्द हो जाता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब इस कैफियत के बारे में
दरियाफ्त किया जाता तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में जो भी खड़ा हुआ उसे चाहिए कि उसके चेहरे का रंग जर्द हो और उसका हर उज़ू काँप रहा हो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज के लिए खड़े होते तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक पर कपकपी तारी हो जाती थी। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद की तिलावत फरमाते तो जहाँ लफ्ज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ते तो जवाबन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते, और जब जन्नत व दोज़ख वाली आयत की तिलावत फरमाते तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेतहाशा रोते थे। एक मर्तबा हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चंद दोस्तों के हमरा खाना तनावल फरमा रहे थे कि खादिम सालन लेकर आया। जब वो सालन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ाने लगा तो बर्तन इसके हाथ से छूट गया और सालन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गिर पड़ा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसकी जानिब देखा तो उसने झट से कुरान मजीद की आयत पढ़ी, जिसका मतलब था कि गुस्सा को पी जाने वाले और माफ़ करने वाले और एहसान करने वालों से अल्लाह मोहब्बत रखता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये फरमान सुना तो उसको माफ़ करते हुए आज़ाद फरमा दिया। रिवायत में आता है कि जब हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कातिलाना हमला किया गया तो हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैफियत देखकर रो पड़े। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने पूछा, ए हसन तू क्यों रोता है? हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोते हुए अर्ज़ किया, वालिद बुजुर्गार, मैं इस बात पर क्यों ना रोऊं कि आप दुनिया के आखिरी दिन और आखिरत के पहले दिन में हैं। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, मेरी 4 बातों को याद रखना, ये तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अव्वल, तमाम दौलत से ज़्यादा बड़ी दौलत अक्ल की है। 2, सबसे बड़ी मोहताजी हमाकत है। सोम, सबसे ज़्यादा वहशत खुद बीनी है। और 4, सबसे बेहतर चीज़ अखलाक हसना है। नेज़ 4 बातें मज़ीद ये है कि ख़ुद को अहमक की दोस्ती से बचाना, क्योंकि वो तेरे साथ नफ़ा का इरादा करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। अपने आप को झूठों की दोस्ती से बचाना, क्योंकि वो दूर के लोगों को तुझसे करीब करेगा और करीब के लोगों को तुझसे दूर करेगा। अपने आप को बख़ील की दोस्ती से बचाना, क्योंकि वो तुझसे इस चीज़ को दूर करेगा जिसकी तुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अपने आप को फासिक की दोस्ती से बचाना, क्योंकि वो तुझे मामूली शय की खातिर बेच देगा। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा के विसाल के बाद हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तेफाक राय से अहले कोफा ने खलीफा मुक़र्रर कर दिया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्त हक़ पर बैत कर ली। करीबन 5 माह मनसब खिलाफत पर फाइज रहने के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाए हुए खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अज़वाज की तादाद कसीर है, जिनसे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेशुमार औलाद दौलत हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कई साहबजादों ने मैदान करबला में जाम शहादत नोश फरमाया। कुतुब सैर में मनक़ूल है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत से दस्तबरदार हुए तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने तमाम अहले खाना और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा दोबारा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 1 लाख दरहम सालाना वजीफ़ा मुक़र्रर किया गया। जिस साल आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहीद किया गया, इस साल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वजीफ़ा ना मिला। जब वजीफ़ा में ताख़ीर हुई तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालात की तंगी के सबब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखने का इरादा किया। अभी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस शोहपंच में मुब्तला थे कि नींद आ गई। ख्वाब में
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासआदत नसीब हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तंग दस्ती का ज़िक्र हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, ऐ अल्लाह मेरे दिल में अपनी उम्मीद पैदा फरमा और अपने मासवा से मेरी उम्मीद तो ख़त्म कर दे और मैं तेरे सिवा किसी से उम्मीद न रखूं और मेरी क़ुव्वतों को कमज़ोर न बना और मेरे नेक अमाल में मुझसे कोताही ना करो और मुझे ऐसी क़ुव्वत अता फरमा कि मैं तेरी मखलूक के पास हाजत लेकर ना जाऊं और ऐ मेरे रब मुझे यकीन की दौलत से माला माल फरमा। अभी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये दुआ पढ़ते हुए एक हफ़्ता भी ना गुज़रा था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से 1.5 लाख दिरहम वसूल हुए और साथ ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से माज़रत का एक ख़त भी मौसूल हुआ। आप हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रकम मिलते ही अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में शुक्राने के नवाफिल अदा किए। हज़रत अब्दुल्ला बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि शहादत से कुछ अरसा कबल हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दोनों आँखों के दरमियान कुल वल्लाहु अहद लिखा हुआ है। हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह ख्वाब सुना तो कहा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के कुछ दिन बाकी रह गए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमसे अनकरीब जुदा होने वाले हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर देकर शहीद किया गया। जिस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया गया उस वक्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर अर्ज़ किया कि भाई आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे बताएं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर किसने दिया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर मेरा गुमान दुरुस्त है तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल हकीकी बदला लेने वाला है और अगर मेरा गुमान गलत हुआ तो फिर मेरी वजह से किसी को बेगुनाह नहीं मारना चाहिए। एक रिवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बीवी जादा बिन अशस बिन कैस ने दिया था। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 रबीउल अव्वल 49 हिजरी को इस जहान फ़ानी से कोच फरमाया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नतुल बक़ी में मदफून किया गया, जहां आज भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ब्र मुबारक मरजह गाह खलाइक ख़ास व आम है। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजा के मुतालिक रिवायत में आता है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा के हर शख्स की आँख अश्कबार थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब जनाजा उठाया गया तो इस जनाजे में लोगों का इस कदर हुजूम था कि अगर सुई भी ज़मीन पर फेंकी जाती तो वो भी हुजूम की वजह से ज़मीन पर ना गिर पाती। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल कोई मामूली वाक़या ना था, बल्कि ये सब्र व तहम्मुल, इस्तग़ना व बेनियाज़ी और अफ़ू व दरगुज़री का विसाल था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को पुकार कर कहते थे कि आज रो लो, क्योंकि आज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब हमसे जुदा हो गया है। सही रिवायत के मुताबिक हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें सियाह और बड़ी बड़ी थीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रुखसार पतले और कलाइयाँ गोल थीं। दाढ़ी मुबारक गुंजान और बल खाई हुई थीं। गर्दन मुबारक बुलंद और शफाफ सुराही के मानंद थी। शाने और बाजू भरे हुए और सीना अक़दस चौड़ा था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा तवील क़ामत न थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर के बाल घुंघराले थे और आप रज़ी अल्लाह तआला हुस्न जमाल का एक बेहतरीन नमूना थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब एक नज़र देखने से गुमान होता था कि गोया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़साहत व बलागत में बेमसल थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़न तक़रीर से भी बख़ूबी आशना थे। इसका अंदाज़ा इससे भी होता है कि नौजवानी में हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आज तुम खुतबा दो और मैं सुनूँगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खुतबा नहीं दे सकूँगा। चुनांचे हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ऊँट में चले गए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहायत फसीह व बलीग़ खुतबा दिया।
جس سے تمام حاضرین بے حد متاثر ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، مگر صفات غلط موضوع کی وجہ سے یہاں ان کا مختصر ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک سے تعلق رکھتے ہیں۔